Dear children of standard second, once again I am here to teach you English, and today we are going to study our unit 4, and that is poem plus prose. Okay? Shall I start? Okay. In poem, the name of the poem is Rain. Okay? Just now rainy season is going on. अभी रेनी सीजन चल रहा है ना. हाँ, रेन में जब बहुत अच्छी जोरदार बारिश आती है तो आपको भी खेलना अच्छा लगता होगा, है ना. तो लेट अस सी व्हाट इज देयर इन द पोएम. ओके. द रेन इज रेनिंग ऑल अराउंड, इट फॉल्स ऑन फील्ड एंड ट्री. द रेन इज रेनिंग ऑल अराउंड, इट फॉल्स ऑन field and tree. It rains on the umbrellas here and on the ships at sea. Okay? This was the poem. Only 4 lines are there in our poem. Okay? And this poem is written by Robert Louis Stevenson. The poet of this poem is Robert Louis Stevenson. Okay, let us start explanation. Okay, I have already sung the poem. Let us see the explanation of the poem. Once again I am going to sing here, and then we are going to start with our explanation. The rain is raining all around. Rain कहाँ हो रही है? Raining all around, everywhere. हर तरफ हो रही है rain. चारों बाजू rain हो रही है ना? It falls on field and tree. अब ये field क्या है? Field मतलब an area with open land planted with crops. एक ऐसा एरिया है जो ओपन है पर उसमें क्या है? प्लांटेशन है, क्रॉप प्लांटेड विथ क्रॉप्स, जिसको हम सिंपली फार्म भी बोल सकते हैं ना. फार्म इज ऑल्सो द सिनोनिम ऑफ फील्ड. फील्ड का दूसरा वर्ड फार्म होता है. ओके. इट रेन्स ऑन द अम्ब्रेलास हियर एंड ऑन द शिप्स एट सी. यहाँ पे सब लोग रेन हो रही है इसलिए अम्ब्रेला लेके जा रहे हैं. तो यहाँ पे वो अम्ब्रेला पे गिर रही है, पर जहाँ पे सी है, ओके, लैंड पे तो सब लोग अम्ब्रेला लेके घूम रहे हैं बिकॉज इट इज रेनिंग. ओके, बट जहाँ पे सी है, सी मीन्स यू नो सी है ना, ओशन, सी, लार्ज वाटर बॉडी. हाँ, वहाँ पे जो बड़ी बड़ी शिप्स है उसके ऊपर रेन हो रही है. ओके, तो this was the poem. Let us do some hard words. New words. Field, an area with open land planted with crops. All around, everywhere, सब जगह. Ships, a large sized boat. बड़ी बड़ी boats होती है उसको ship बोलते हैं. Okay? Sometimes it is multi-storied. बहुत सारे मछले भी होते हैं उसमें, है ना, तो दैट इज कॉल्ड शिप. फिल इन द ब्लैंक्स. द डैश इज रेनिंग ऑल अराउंड. क्या हो रहा है सब जगह पे? रेनिंग. क्या हो रहा है? रेनिंग. किसकी रेनिंग हो रही है? रेन. रेन इज रेनिंग ऑल अराउंड. सेकेंड नंबर, द रेन फॉल्स ऑन डैश. हमारी पोएम में जो रेन है वो कहाँ पे हो रही है वैसा बताया है, तो ऑन फील्ड एंड ट्री. द रेन फॉल्स ऑन फील्ड एंड ट्री. व्हेन इट रेन्स वी यूज डैश. यहाँ पे पोएम में हम क्या यूज किया है? अम्ब्रेला. हम भी यूज करते हैं ना, इवन वी आर यूजिंग रेन कोट्स एज वेल, बट यहाँ पे व्हेन इट रेन्स we use umbrellas. Dash sail on the sea. sea में क्या सेल होता है? ships.
Ships sail on the sea. Number 5. Dash clouds bring rain. कैसे clouds rain लाते हैं? Black. तो black clouds bring rain. Okay. Now let us see some textual exercises. In your textbook, on the page number 55, some questions are given regarding your poem. Let us see what are they. Where does the rain fall in a poem? It is asking regarding a poem. Where does the rain fall? बारिश कहाँ हो रही है? तो the rain falls everywhere. On the field, then tree, and also on umbrellas and on ships in the sea. What do people use when it rains? जब बारिश होती है तो लोग क्या यूज करते हैं? तो people use umbrellas and raincoat when it rains. What do you do on a rainy day? आप क्या करते हैं रेनी डे में? Yes, I am very sure कि आपको भी मज़ा आता होगा रेन में, बारिश में खेलने का, है ना? तो what you have to write? I enjoy playing in the rain, है ना? And then making boats as well, है ना? How do you keep yourself dry in the rain? अपने आप को आप कैसे बारिश से बचा के रखते हो? When you are coming to the school, ना जब स्कूल आते हैं आप और बारिश गिरती है तो क्या यूज़ करते हैं आप? Yes, either umbrella or raincoat. तो we use umbrellas and raincoat to keep ourselves dry in the rain. Say what things live in water. पानी में क्या रहता है? Yes, first तो जब ये बात कोई हमसे पूछे कि पानी में who lives in the water, तो सबसे पहले तो हमारे दिमाग में क्या आता है? Yes, क्या आता है? Fish, fishes, then frogs, then very many water animals are there, crocodile as well, then tortoise, है ना, ducks. Have you heard the sound of rainfall? Almost सबने ही sound सुना है rainfall का, है ना? Yes, I have heard the sound of rainfall. What sound does the rain make on umbrellas? जब अम्ब्रेला पे बारिश गिरती है तो उसकी आवाज़ कैसी होती है? तो टिप 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 टिप, है ना? It is like that. What sound does the rain make on the leaves of the trees? अगर वो पेड़ के पत्तों पे leaves के ऊपर जब बारिश गिरती है, बारिश की बूंदें गिरती है, तब उसकी आवाज़ कैसी होती है? टप टप टप, है ना? It falls very slowly, है ना? What sound does the rain make on your window? Make all these sounds yourself. These sounds you have to do on your own, but I am showing it once. अगर आपको कोई अलग आवाज़ सुनाई देती है, then you can write that also. पर जब विंडो पे आवाज़ बारिश आती है तो उसकी आवाज़ कैसी होती है? थप थप थप, है ना? Let us see on page number 56 and 57. Here story is given and we have to complete this story. Okay, counting clouds. As one little white cloud floated in the sky one day, another little cloud called out, "Come, let us play." एक छोटा सा white cloud आसमान में आता है, फ्लोट हो रहा है, बह रहा है, तो दूसरा छोटा क्लाउड भी उसके पास आता है और क्या बोलता है? चलो, कम लेट अस प्ले, चलो हम खेलते हैं. As two little clouds dance in the sky, so blew another little cloud asked, "Can I join you?" ये दोनों को खेलता देख के एक छोटा ब्लू क्लाउड भी आ जाता है
और वो क्या बोलता है कि क्या मैं तुम्हारे साथ खेल सकता हूँ। आपके साथ भी ऐसा होता होगा ना, जब दो फ्रेंड्स खेल रहे हैं और आप देख रहे हो, है ना। अदरवाइज आप और आपका दूसरा कोई फ्रेंड खेल रहा है और अगर आपका तीसरा फ्रेंड देख रहा है तो बोलेगा कि मैं क्या आपके साथ खेलूँ। तो यहाँ पे भी वही द सेम थिंग इज गोइंग ऑन हियर। As three little clouds held hands in the sky, तीनों हाथों में हाथ लेके खेलते हैं, डांस करते हैं, क्या करते हैं। Let us see. The wind blew another little cloud very close by. और एकदम से विंड आता है और उसके साथ एक क्लाउड खींच के उनके पास आ जाता है। अब कितने हो गए? 4 हो गए। As 4 little clouds decided what to do, another little cloud joined them very quietly too. 4 को देख के धीरे से एक पीछे से आता है और वो भी उनके साथ ज्वाइन हो जाता है, जुड़ जाता है। संधिनी गोविंदन ने ये स्टोरी लिखी है। नाउ आगे हमको कंप्लीट करनी है। नाउ राइट व्हाट द 5th एंड द 6th क्लाउड्स डिड। अब 5th और 6th क्लाउड क्या करेंगे? क्या करेंगे? हाँ, यस, द 5th एंड द 6th क्लाउड may also join them and play with them, dance with them and enjoy with them. Okay, on page number 58 here, can you see page number 58? यहाँ पे एक क्रॉसवर्ड दिया है, पजल क्रॉसवर्ड दिया है, आपको वो सॉल्व करना है। ओके, यहाँ पे हमको पिक्चर्स दिखाए हैं और आपको उसके स्पेलिंग्स वहाँ पे लिखने हैं। दिस यू हैव टू डू ऑन योर ओन। ओके, डू बाय योरसेल्व्स। ओके चिल्ड्रन, एंड बिलो दैट वन एक्सरसाइज इज गिवन। उसमें हमको जो भी पिक्चर्स दिए हैं आपको उसके नाम अपनी मदर टंग में लिखने हैं। आप उसको क्या बुलाते हो वो लिखना है। सपोज एक मैं करके आपको दिखा रही हूँ। फर्स्ट वन इज द मून। पहला पिक्चर है मून का। ओके, कैन यू सी? अब मून को हम क्या बोलते हैं? अगर हिंदी में हम चंदा बोलते हैं, चंदा मामा भी बोलते हैं, है ना, चांद भी बोलते हैं। और इन इंग्लिश वी से मून। यस, तो ये भी आपको अपने आप करना है। यहाँ पे एक रिडल दी है। रिडल मीन्स एक पजल। ओके, आपको वो सॉल्व करनी है। हु एम आई, ये आपको ढूंढना है, बताना है कि ये कौन है। आई गो अप एंड डाउन अ लॉट, मैं ऊपर और नीचे बहुत जाता हूँ। वेदर इट इज कोल्ड और हॉट, चाहे ठंडी हो या गर्मी हो, मैं ऊपर नीचे होता रहता हूँ। समटाइम्स आई एम ऑन द ग्राउंड, कभी कभी मैं जमीन पे आता हूँ। अदर टाइम्स आई एम इन द क्लाउड्स, और ज़्यादा टाइम मैं कहाँ पे होता हूँ? बादलों के अंदर होता हूँ। माई नेम लाइज विथ डॉटर, मेरा जो नाम है वो डॉटर का राइमिंग वर्ड है। तो आई एम योर फ्रेंड नेम्ड वाटर। यस, हमेशा ऊपर नीचे होता है ना, इवेपोरेट होता है ना, देन कंडेंस होके रेन बन के नीचे आता है। गर्मी हो या ठंडी हो, हमेशा इवेपोरेशन कंडेंसेशन होता रहता है। कभी कभी वो ज़मीन पे आता है और ज़्यादातर वो कहाँ होता है? इन द क्लाउड्स, क्लाउड्स के अंदर होता है। और उसका नाम डॉटर, वो डॉटर का राइमिंग वर्ड है, तो क्या है वो? वाटर। लुक एट दिस फिश टैंक। यहाँ पे पेज नंबर 59 पे फिश की टैंक दिखाई है, आपको उसके बारे में लिखना है। ओके, एटलीस्ट 3 sentences you have to write about the picture. Okay, let's sing. Rain on the green grass, rain on the tree and rain on the housetop but not upon me. एक लड़का है, वो गा रहा है कि rain on the green grass, rain on the tree and rain on the housetop. घर के ऊपर, छत पे, घर की छत पे या टेरेस पे भी बारिश आ रही है, पर मेरे पे आ रही नहीं है। Some exercises are given here on page number 60.
जो राइमिंग वर्ड्स है आपको सेम कलर उसमें करने हैं। यहाँ पे 3 कलर्स दिए हैं। जहाँ पे आई एंड इन वाले वर्ड्स है वहाँ पे आपको रेड कलर यूज़ करना है। डाउन वाले वर्ड्स है वहाँ पे आपको येलो कलर यूज़ करना है। और पर्पल कलर है वहाँ पे जहाँ पे नॉट आता है वहाँ पे आपको पर्पल कलर यूज़ करना है। ओके, जैसे पिन, स्पिन, टिन, फिन, इन दीज ऑल वर्ड्स you should use red color or pink color. Okay, brown, clown, frown, gown, crown, drown, ये सब में आपको येलो यूज़ करना है। और पॉट, डॉट, कॉट, हॉट एंड स्पॉट, इसमें आपको पर्पल यूज़ करना है। ओके, दिस वॉज द पोएम ऑफ यूनिट 4। थैंक यू चिल्ड्रन।